Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Bank Nifty and key stocks of Bank Nifty with MJ. Friends, आज है 18th October and Sunday. We will be estimating probable moves, support and resistance levels, buying and selling zones in Bank Nifty and key banking stocks for Monday, that's 19th October, which will be the first day of trading or market in next week. And friends, if you are new to our YouTube channel, please do subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon and be generous to share the videos with your friends and trading communities. Well, let's look at the performance of Bank Nifty during the last week, right? For that, let me share, friends, the chart with you, right? Let me share the chart. And from the chart, it is very clear after Thursday's down movement. Thursday's down movement was almost equally big as was on 31st अगस्त, राइट? तो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, काफी बड़ा डाउनफॉल था. एंड दैट वाज आल्सो वीकली एक्सपायरी. देयर वर नेगेटिव न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट आल्सो प्लेड इन our market typically. Friday, as expected in our previous analysis, that market will bounce back and the market bounced back. हमने estimate किया था friends कि Bank Nifty. So in this video we will not be talking about Nifty क्योंकि Nifty के लिए मैंने already एक video बना दी है और उसके साथ में almost 8 stocks of Nifty are analyzed as a bonus. So in this video friends we'll only be talking about बैंक निफ्टी. तो हमने फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में एस्टिमेट किया था 22,500 से 23,500 की रेंज एंड बैंक निफ्टी मोर और लेस उसी रेंज में ट्रेड की विद अ बाउंस बैक व्हिच वाज एक्सपेक्टेड. एंड इन फैक्ट बैंक निफ्टी ने मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस डेज लॉसेस covered. So Bank Nifty closed at 23,533 with a net gain of almost 460 points. Right, market range boundary. In Bank Nifty only we saw a little of bullishness. Overall, breadth market की positive रही. 39 stocks out of 50 stocks of Nifty advanced while as 11 declined. Right. अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो although लोअर हाई एंड हायर लो बनाए तो इसको हम इन कैंडल कंसोलिडेशन बोलते हैं. तो इन कैंडल कंसोलिडेशन के फॉर्म में है नीदर अप ट्रेंड नॉट डाउन ट्रेंड इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो दीज टू कैंडलस्टिक्स पुट टुगेदर आर फॉर्मिंग bullish harami kind of pattern, which is typically a bullish pattern. Of course, at the same time एक अच्छी चीज हुई कि अगर हम वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का तो उसमें डार्क क्लाउड कवर था प्रीवियस डे में, बट if I see the whole week's performance, it is no more a dark cloud cover. Of course, thoda bearishness hai, but not the kind of bearishness which could further bring down the market to much lower level, which was expected on Thursday, or which was estimated on Thursday by most of the analysts. अगर हम प्राइस एक्शन रेंज की बात करें फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में मूव करती है तो यू विल सी द resistance levels are at 23,643, 23,732, 23,922, 23,963. तो ये अपर साइड में इसके पास में रेजिस्टेंसेस हैं. और अगर मार्केट डाउन साइड में मूव करती है बैंक निफ्टी, यू वुड गेट अ फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कमिंग एट 23,433, next at 23,290. That means it's a confluence of two Fibonacci numbers, and second level of support it will get at 23,216 का, राइट, जो कि ओपनिंग प्राइस था हमारा फ्राइडे का. उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक और सपोर्ट लेवल हमको मिलेगा फ्रेंड, जो कि होएगा 23,149, जो कि फ्राइडे का लो था. अगर ये लेवल टूटता है देन जो हमारा थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है विच इज समवेयर अराउंड 2372, ये हमारा थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा. फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा हमारा यहाँ पे थर्सडे का लो, राइट. थर्सडे का लो था हमारा 22,975.
22,975 टूटने पे डेफिनेटली एक मार्केट में सेल आउट होएगा. 22,752 के आसपास में मार्केट जा सकती है, राइट. So at this point of time, you can see that in Bank Nifty, this downtrend line is there, and the Bank Nifty इसको तोड़ने में थोड़ा resistance feel कर रही है. Although Bank Nifty very comfortably has re-entered the ascending channel, which it has been in from the like pre-COVID टाइम के, राइट. मार्च 26 के बाद में जो ये एक चैनल बनी है, अभी भी बैंक निफ्टी उस चैनल में, ऑल्दो द angle of rise is not as steep as is in Nifty. Right. So let me jot down what could be the trading range for uh, Monday. So Monday के लिए जो मुझे ट्रेडिंग रेंज नजर आती है फ्रेंड्स, दैट इज समवेयर अराउंड 20 3,072, right, to 23,963. सो ये एक मंडे की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है. और अगर वीकली पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो डाउन साइड you could see that in case of extreme bearishness, it could be 21,863, and the upside is limited towards 25,220, right? 25,220. Sorry friends, लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रही है यहाँ पे, right? So this is our weekly range, while as this is for Monday. Make a note of it so that it helps you while you are trading, right? And of course, we'll be looking at other data perspectives. But before that, let's have a look at what are the constituents of बैंक निफ्टी डूइंग, राइट. तो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट जो है जिसका कि सबसे ज्यादा वेटेज है, वो है एचडीएफसी बैंक. वी बीन बुलिश इन एचडीएफसी बैंक फ्रेंड for many days. I had given this call at 11,060 के आसपास में. हमने ये bullish breakout identify किया था, which was from breakout from the W pattern, and our target had been around 1300. But 1300 से पहले we had a target of 1273, 1298, 1335. तो ये तीन टारगेट हैं एचडीएफसी बैंक के लिए. एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है फ्राइडे को फ्रेंड्स, एंड the Friday results, that's the Q2 results, right? Quarter 2 of financial year 2021. So that result seems to be extremely good, although it includes some other income in that, right? So HDFC remains bullish. Let's have a look at Axis Bank. And Axis Bank का भी अगर आपको last week की commentary याद हो, तो Axis Bank was also in bullish mode, and in although last 5 session में ये 475 तोड़ नहीं पाया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश दिखा रहा है, राइट. सो अगर एक्सिस बैंक में आप देखेंगे केयरफुली, तो देयर सीम्स टू बी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड ये पैटर्न एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है. सो आवर टारगेट इन एक्सिस बैंक इज समवेयर अराउंड 525 to 535, 36 के आसपास में हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो कि नियर टर्म टारगेट है. मिड टर्म टारगेट हमारा 613 का है, और लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 675 का है. सो देयर इज अ गुड strength in Axis Bank. So when I'm talking about these targets, friend, or the patterns, I'm not recommending you to buy immediately. You can talk to your financial advisors. I'm only sharing things for a study purpose, right? So before you take a call, you have to take a responsibility of your losses as well. As you know, the stock market is a risky business, and you must learn it before entering this business, right? So the third bank is a RBL Bank. RBL Bank, we've been having a sideways view about RBL Bank. It's a range bound between 160 to 200, friends, and अभी भी ये वहां से निकला नहीं है, राइट. सो आरबीएल में अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ the position could be only above 185. 185 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली देन 214 could be the long term target. बट ये एक असेंडिंग चैनल में लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर आता है, तो इट कुड, अगर बैंक निफ्टी अप मूव दिखाती या इंटरनेशनल मार्केट अप मूव दिखाते, तो मंडे यू वुड सी आरबीएल इज आल्सो मूविंग upside, right?
नेक्स्ट हमारा बैंक है एलिफेंट बैंक फ्रेंड, एसबीआई, राइट। आई कॉल इट एलिफेंट बैंक बिकॉज बहुत स्लो मूव करता है बट डेफिनेटली स्टडी मूव करता है। तो एसबीआई इज ऑल्सो मूविंग इन अप चैनल एंड ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए मूव कर रहा है अप साइड में, एंड इसने 61% फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट लिया। हाउएवर 38% 50% फिबोनाची लेवल तोड़ा है, बट 38% फिबोनाची लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। along with 38% Fibonacci, you also have a 100-day EMA जो कि करीब करीब हमारा 198 199 के आसपास में है। सो लॉन्ग पोजीशन इसमें तभी बनेगी जब 200 का यू नो 200 का मार्क डिसाइसिवली टूटेगा। ऑल्दो इसने तोड़ा है 200 का मार्क, बट डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। डिसाइसिवली मींस एटलीस्ट 1 से 2 दिन यहाँ पे इसके ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, देन यू कैन create a long position. So mid-term to long-term, of course, SBI is in bullish mode, but at this point of time थोड़ा बैंक की हालत खराब है, इसके लिए SBI उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप SBI में भी देखेंगे तो यू कैन सी दैट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है, बट तो इसको अगेन ब्रेकआउट के लिए ऑलमोस्ट 200 या 205 के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। एंड अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 232 232 वुड बी योर नेक्स्ट टारगेट इन एसपीआई। राइट नाउ अगर बैंक निफ्टी साइडवेज मूव करेगी तो ये भी साइडवेज मूव करेगा फ्रेंड्स। कोटक बैंक, let's have a look at Kotak Bank had been in a bearish and sideways movement, and now थोड़ा सा बुलिशनेस आई है फ्रेंड्स। इट हैज क्रॉस 38%, बट जो यहां से ये फॉल था उसका 61% करीब करीब फ्रेंड्स पड़ता है 1400 में। सो कंसीडर दैट 1400 के ऊपर इसमें पोजीशन बनाना ठीक रहेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टिल कोटक बैंक में ये एक रेंज बाउंड है, राइट। हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से या प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अच्छा बैंक है, but for some or other reason it's been range bound for a long time now. So avoid such a bank unless until there is a clear breakout. ऐसे बैंक में पोजीशन लेके कोई मीनिंग नहीं बनेगी, of course, unless until you are looking for a long term. Now if you look at ICICI Bank friends, one of the important constituent, तो इसने भी यहाँ पे एक inverted head and shoulder का पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट लिया और उसके बाद में एक अप मूव में है। 389 इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स, एंड 420 के आसपास में इसका नेक्स्ट टारगेट है। सो अराउंड 30 पॉइंट व्हिच माइट बी फेचिंग यू लेट्स से maybe around 7 to 8% on a short term, but on a long term 450 का इसका टारगेट है, which after the breakout from let's say 400 2021 के लेवल पे, एंड नेक्स्ट टारगेट उसके बाद में 503 का है इसका, जो कि हम बोल सकते हैं कि मिड टर्म टारगेट हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट कुड बी प्री कोविड लेवल्स, जहां पे कि आईसीआईसीआई ट्रेड कर रहा था 550 के लेवल पे फ्रेंड्स। ICICI is a good bank in term of technical or fundamental both, and 100 डेज का ईएमए ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, एंड अगर फर्दर गिरावट होती है इसमें तो यू वुड सी दैट 370 से 368 के बीच में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। सो यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन आईसीआईसीआई accordingly. Let's look at IndusInd Bank friends. So IndusInd Bank अगर आप देखेंगे तो again it has made a inverted head and shoulder pattern, but again breakout इसका होएगा 640 के ऊपर, and आपका टारगेट पहला होएगा 705 का। नेक्स्ट टारगेट could be 852. So 852 would be uh, not immediate target. It might take some time to reach there, but 705 could be the target, immediate target, 705 to 710, right? So it's more bullish than in comparison with other banks. That's what is feasible from here. However, at this point of time ये भी एक sideways momentum में चल रहा है, right? So लॉन्ग पोजीशन के लिए if it sustains above than 632 633, then only एक long position आएगी। in that case from this uh, high to this low का 61% भी क्रॉस हो जाएगा। इनफैक्ट 625 है जो कि 61% फिबोनाची है इस लेवल का, so that also you need to look at, right? Above than that definitely it will reach the double top.
So bullish bias है इसमें. Now look at the Federal Bank, friend. Federal Bank again head and shoulder बनाया इसने, inverted head and shoulder, and in fact ये breakout मैं बोल सकते हो. अगर आप इस let me draw that for you. Some of you might be wondering कि head and shoulder inverted है क्या. So this is, you know, head and shoulder pattern. एक शोल्डर ये भी बन रहा है फ्रेंड्स, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज अ शोल्डर, राइट. तो अगर आप किसको शोल्डर लेते हैं उसके हिसाब से यू नो यू वुड सी द ब्रेकआउट. तो ब्रेकआउट अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो हाउ यू वुड सी द ब्रेकआउट इज, लेट मी टेक दिस ट्रेंड लाइन हियर, राइट. सो 54 के ऊपर ब्रेकआउट होएगा अगर आप इसको लेफ्ट शोल्डर मानते हो. अगर इसको लेफ्ट शोल्डर मानते हो तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. Now if you look at Federal Bank is a good bank in term of it's a little conservative. So a small position can be made if you consider this as a head and shoulder. So आपका टारगेट क्या होगा फ्रेंड? टारगेट होगा अराउंड 58 का पहला टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट होएगा करीब करीब 62 का. सो दैट्स व्हाट इज अ फेडरल बैंक डूइंग. फेडरल बैंक को अच्छा क्वेश्चन है ये लेवल पे, करीब करीब 50 के लेवल पे. So that could also act as 59 could, or 59.5 could act as your stop loss. So overall अगर बैंक की conditions देखें friends, except one or two banks, you know, out of the 8 banks we discussed, most of the banks are showing bullish bias, and the structures or the patterns of banks are, you know, inverted head and shoulder, including SBI or any large bank, right. और किसी ने W pattern से already breakout ले लिया है. However, ये patterns को complete करने के लिए, मतलब इनको इनके target तक पहुंचने के लिए ये जरूरी होएगा कि market में थोड़ा bullish bias रहे. तो अगर market में bullish bias रहता है, which is right now coming from the इंटरनेशनल मार्केट्स ओनली, राइट. क्वार्टर टू के रिजल्ट्स ठीक ठाक है, और बहुत सारे बैंक्स के अभी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स अनाउंस हुए नहीं हैं. सो इन सच अ केस आपको जो क्यूज देखने हैं वो देखने हैं इंटरनेशनल मार्केट से फ्रेंड्स. इंटरनेशनल मार्केट डव जोन्स होए या नैस्डैक होए और एसएनपी, मैंने ऑलरेडी मेरे निफ्टी और की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी में एनालाइज किया हुआ है. सो प्लीज लुक एट दैट वीडियो सच दैट यू गेट अ क्यू की इंटरनेशनल मार्केट हमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सच दैट यू कैन ऑल्सो ट्रेड योर local market with the help of that. Now friends, let's have a look at data points. Data points क्या बात कर रहे हैं? So what we are looking at is Bank Nifty option chain. The series will be expiring on 22nd October. वीकली ऑप्शन चेन सीरीज की बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट 23,533 पे क्लोज हुई है. सो वी विल बी कंसिडरिंग 23,500 एज अ एट द मनी ऑप्शन. एंड एट द मनी ऑप्शन के आसपास में हम कोशिश करेंगे ये देखने की बुल्स एंड बियर्स के सेंटिमेंट्स किस टाइप के इमर्ज हो रहे हैं. सो 23,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है और ये एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है. तो विल कंसीडर इट सपोर्ट. टू द सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी एट 23,300. नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट सीधे दिखता है मेरे को 23,000 पे फ्रेंड्स. ऑल्दो यहाँ पे छोटी मोटी पुट राइटिंग हुई है बट नॉट इवन 1 लाख के ऊपर, राइट. एंड 23,000 मेरे को मंडे के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जहां पे कि मैक्स ओआई है, राइट. तो वी विल कंसीडर दिस एज अ लोअर रेंज. ऑन द अपर साइड अगर हम देखें कि बियर्स ने किस टाइप के पोजीशन बनाए, तो 23,500 पे ओवरऑल एक 4.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो दिस विल वर्क एज अ R1. अगर अपर लेवल पे यहाँ पे भी कॉल राइटिंग कुछ खास नहीं हुई है, ऑल्दो यहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो वी कैन कंसीडर इट एज R2. फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है. हाउएवर एट 24,000 के लेवल पे यू कैन सी दैट देयर इज अ गुड कॉल राइटिंग एज वेल एज जो ओपन इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम है. सो वी विल कंसीडर दिस एज R3. सो विल ऑल्सो राइट यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट डिवेलप हुआ है, राइट. सो यहाँ से जो हमको एक रेंज दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, वो दिखाई दे रही है 23,000 टू 24,000 की, राइट. एंड हमने प्राइस एक्शन में भी मोर और लेस ऐसे ही एक रेंज देखी थी, अगर आपको याद हो तो 23,072 से 23,963 की. सो डेटा एज वेल एज द टेक्निकल्स आर
इन सिंक राइट नाउ. अगर हम इस सीरीज का पीसीआर देखें फ्रेंड्स, तो पीसीआर is a put call ratio that again says how many calls have been written, how many puts have been written, and this also gives us a sentiments, right? So let's say the put call ratio of this is 0.88. So ये इंप्रूव हुआ है पिछले पुट कॉल रेशियो से, जो कि था 0.65. सो थोड़ा पुट राइटिंग बड़ी है, दैट मीन्स ऑन फ्राइडे. हाउएवर ओवरऑल अगर पीसीआर देखें तो 0.88 का पुट कॉल रेशियो हमको एक साइडवेज टू अ लिटिल न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस दिखाता है, राइट? तो ये भी एक नोट करने की चीज है फ्रेंड्स. अगर हम एफ और डी के एक्शंस देखें फ्राइडे में, तो फ्राइडे में दोनों नेट सेलर थे. एफ सोल्ड equities in cash market with 480 crore, while as DIs were net seller with a 430 crore. FIs as of now are sideways, although retailers are mild bullish after seeing the Friday's green candle. And most of the time you would see the retail traders का जो view होता है वो अक्सर wrong होता है, right? And of course, DIs at this point of times are न्यूट्रल. एंड हम ये बोल नहीं सकते हैं उनका क्योंकि DIs आर नॉट अलाउड टू सेल द ऑप्शन, तो वो एक सेक्शन से अलग हो जाते हैं वो. अदरवाइज FI का डेटा कंप्लीट साइडवेज है. Also worth noticing is pros proprietary desk at this points are mild bearish in options. So जो एक रिटेलर का काउंटर है उसको प्रो का काउंटर न्यूट्रल कर रहा है. एंड बाकी FI एंड DI थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि 480 करोड़ या 430 करोड़ की सेल आउट बहुत बड़ी सेल आउट नहीं होती है मार्केट में. अगर हम RSI के पर्सपेक्टिव देखें तो मार्केट सीम्स टू बी इन साइडवेज. ऑल्दो इंडिया विक्स 2% के आसपास में गिरा है फ्राइडे के लिए, तो जो कि बुल्स के लिए थोड़ा अच्छी न्यूज है. मार्केट इज नीदर इन ओवरसोल्ड और नॉर इन ओवरबॉट जोन. ओवरसोल्ड जोन में चला गया था थर्सडे को, बट फ्राइडे को थोड़ा ऊपर आया तो ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल आया मार्केट. अगर 22,750 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी स्पेशली, तो यू वुड सी 25,000 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी. और अगर 22,750 के नीचे मार्केट या बैंक निफ्टी नीचे जाती है, तो यू वुड सी दैट 22,000 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम नेक्स्ट रेंज की बात करें तो प्राइस एक्शन एज वेल एज डेटा पॉइंट से जो निकल के आ रही है रेंज, वो निकल के आ रही है 23,000 से 24,000 की. नाउ वी विल लुक एट व्हाट काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कुड बी देयर फॉर यू in a 15-minute chart. For that, let me apply 15-minute candlesticks. The time frame needs to be reorganized, right? So in 1 minute friends, I'll have to change some of the settings here, right, and reload this chart. Give me a minute guys. All right, क्योंकि दोनों जगह पे निफ्टी का ही चार्ट ओपन हो गया था. 1 more minute guys. Sometimes since we are opening two charts together, you will have to have little patience friends. So let's open now charts. Or maybe the chart got saved automatically. Give me a minute. Let me back nifty. So let's apply the bank nifty chart here friends. Here it is, and let's see in a 15-minute. Right, so in 15-minute chart, if you see bank nifty 23,433 से 23,585 नो ट्रेडिंग जोन में है. However 23,585 से 23,643 का जो ये जोन है फ्रेंड्स, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन, तो ये जोन में भी आप ट्रेड बेटर है न करें. If bank nifty closes
decisively above 23,650 and holds there for 20-25 minutes, then you can take a long trade. However, आपको पहला hurdle मिलेगा 23,732 पे. Now 23,732 पे जो hurdle आपको मिलने वाला है, that is almost 70 points up रहेगा वो, right? तो maybe 80 पॉइंट्स. तो ये 80 पॉइंट्स में आप चाहें तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें फ्रेंड्स, एंड देन यू हैव टू वॉच आउट. अगर रिवर्सल होता है तो सारा प्रॉफिट यहाँ बुक करें. अगर ये लेवल टूटता है तो पार्ट पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 23,922 के लेवल के लिए. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली यू शुड, इनफैक्ट यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स एट मच बिलो देन दैट, क्योंकि यहीं से आपको एक रेजिस्टेंस मिलना चालू 23,850 के आसपास में आपको सेल आउट चालू हो जाएगा. सो आप बाकी का पोजीशन लॉन्ग साइड का यहाँ पे बुक कर लें. किसी कारण से अगर बैंक निफ्टी हायर लेवल पे स्टार्ट होती है तो और आपको रिवर्सल देती है, तो 23,732 के आसपास से अगर रिवर्सल देती है, देन यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन. गैप अप होने के बाद में अगर आपको गैप अप ज्यादा मिलता है, समटाइम्स बैंक निफ्टी आपको 80-90 पॉइंट का गैप अप दे देती है. अगर ऐसे में आप लॉन्ग जाएंगे तो शायद लॉन्ग न मिले आपको बैंक निफ्टी में. सो वॉच आउट एटलीस्ट 20-25 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करें, उसके बाद में ही कोई पोजीशन लें. शॉर्ट साइड की पोजीशन अगर आप एनी फ्रेंड, अगर बैंक निफ्टी 23,400 के नीचे स्लिप करती है, इन दैट केस यस यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन. आपका टारगेट होएगा 23,290 का. सो दैट मींस अराउंड 150 पॉइंट के आसपास में आपको डाउन साइड में मिलता है. और 23,216 से 23,290 तक there is a confluence of support levels. There are two Fibonacci levels, then there is a price action level. उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे 23,149 is also strong support. तो ये एरिया में ट्रेड न करें, मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है. तो आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो इनफैक्ट 23,430 के नीचे शॉर्ट एक बनेगा जो कि 23,290 तक है. और अगर मार्केट 22,643 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे लॉन्ग आपको मिल सकता है. सो कम अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से. हाउएवर यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग. डू यूज स्टॉप लॉस. विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड न करें, दैट विल बी बेटर. एंड जैसे आप देखेंगे निफ्टी 12,000 के आसपास में जाती है तो वोलेटाइल हो जाती है, विच आई हैव बीन टेलिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस. सो यू बी केयरफुल. अगर निफ्टी भी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही है, तो वो लेवल पे वोलेटाइल मार्केट को ट्रेड न करें, राइट? सो of course you have to look at what is happening in US now. It seems the stimulus which was being discussed so much is no more available in US before the elections are over, right? And IT sector में profit booking हो रही है at this point of time. That may further be hindrance to Nifty's up move. Q2 financial year 21 के रिजल्ट देखते रहें. इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, जिस हिसाब से एक बैंक निफ्टी मुझे रेंज में दिखाई दे रही, चाहे आप डेली रेंज की, जैसे हमने मंडे के लिए एक रेंज की बात की, वैसे ही अगर हम देखें तो वीकली रेंज हमको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स यहाँ पे 21,900 से 25,200 की. तो ये रेंज में आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं. इफ यू नो द ऑप्शन, दैट मींस यू आर गोइंग टू सेल द ऑप्शन एज वेल एज यू आर गोइंग टू hedge दैट सोल्ड. हेज कैसे करते हैं हम? ऑप्शन को सेम, अगर आपने कॉल बेची है तो कॉल बाई करके, एंड पुट बेची है तो ओटीएम की पुट खरीद के आप ऑप्शन की strategy लगा सकते हैं. बट दैट्स अ हाईली स्किल्ड वर्क फ्रेंड्स. इफ यू नो दैट ऑप्शन, देन ओनली ऑप्शन स्ट्रेटजी, देन ओनली यू कैन ट्रेड इट. अदरवाइज आप सिंपली स्टॉक स्पेसिफिक रहें, क्योंकि निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी माइट बिकम रेंज बाउंड इन कमिंग टाइम्स. इट विल कंसोलिडेट, करेक्ट. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है, बट यू नीड टू बी केयरफुल, राइट? I hope, friends, this analysis of Nifty, Bank Nifty, or key stocks of Nifty and Bank Nifty is helping you to become, a professional trader or at least profitable trader, right? So thank you very much for watching the video, friends, and do share the videos with your friends and trading communities who can also be benefited from, quality knowledge. We have many videos in our YouTube channel which can be used for, enhancing your knowledge, friends. Do watch them.
that will be great. There are videos on investment, there are videos on trading, there are videos on IPOs, QIP or other subjects, right? Data analysis के 3 video हैं friends that can also be helpful to you. Do share these videos as well with your friends. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the videos, and signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.